ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਇੰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਰਨ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ। ये वो बोर्ड है जो पहले मदरसा हमने कैंप किया था उस जमाने का, यानी आज से 35 साल पहले। जब ये लोग यहाँ पे कब्जा कर रहे थे, आप तब क्यों नहीं बोले? साढ़े पिंड दा जनाज़ा है, पैसे असां आए पिंड दे उत्ते। इनका ठेकेदार मंशा जो है ना वो गवाह है। अच्छा। अगर वो कुरान पाक पे हाथ रख के कह दे कि ये बात गलत है, हम यहीं छोड़ देंगे ये मदरसा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WY पाकिस्तान के साथ आपका मेजबान वकारी यूनुस आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील डस्का, जिला सियालकोट के नवाही गांव जमालपुर बानोके में। यहाँ पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। 11 जून को एक वफात होती है और उसका जनाजा जिस जगह हम खड़े हैं, ये बैक साइड पे आप जनाजा देख रहे हैं, इस जनाजा के बाहर आती है, लेकिन जनाजा को ताला लगा होता है और इस वजह से मैयत बाहर पड़ी रहती है। 11 जून रोज जुमेरात वाले दिन दादा फौत होए ने, जनाजा इत्थे बाहर लिया के रखिया ऐसी जगह ते दरवाजा बंद ही। उन्हां दे घर गए हैं, जाके उन्होंने आखिया चाबी दे दो, उन्होंने चाबी नहीं दी, अंदर जनाजा नहीं रखन दे रहे। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ जी ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਚੋਰੀ ਗ੍ਰਾਮਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਚਲੋ ਜੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸਾ ਚ ਲੈ ਲਈਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਬਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੋਈ ਆਲਾ ਟਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा, चोरी ग्रामबारी साहब ने जगह दी ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਨਾਜ਼ਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ? ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। 35-40 ਸਾਲ। ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੇਦ ਸੀ। ਸਫੇਦ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਮੀਰੋ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਵਾਇਆ? ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ 15-18 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹੁਣ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦਗੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦਗੀ ਨਹੀਂ? ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦਗੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਵਿਹਲਾ ਚ ਪਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਵੋ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਇਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਪਏ ਪੜਨ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣੇ ਵਸੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਰੇ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਮਰਾ ਪਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਥੋਂ ਮੁਦਾਖਲਤ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜਨਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅੱਜ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਅਸਾਂ ਆਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ? 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ 2 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਓ, ਸੀੜੀ ਚਾੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਵੀ ਅਮਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨੇ? ਸਬੂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? 6 ਬੰਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਮੌਲਵੀ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ जिन्हों ने इतने मदरसा पढ़ाते हैं। नंबर 1 पे है, जब तक ऊपर वाली बिल्डिंग तैयार नहीं होती बच्चों की तालीम तदरीस का अमल नीचे जारी रहेगा। ठीक है। नंबर 2 पे अगर किसी दौरान कोई फौतगी होती है तो उस दिन बच्चियों को छुट्टी होगी। जब ये लोग यहाँ पे कब्जा कर रहे थे, आप तब क्यों नहीं बोले? पूरा गांव इसलिए नहीं बोला कि ये अच्छा काम है, मोहल्ले की लड़कियां बच्चियां इधर पढ़ेंगी, चलो सबको तालीम में इजाफा होगा। अच्छा, अब जो है वो आपने काम स्टार्ट किया ये मुआहदे के बाद? ठीक है। अभी मैंने देखा कि आपने काम रोक दिया, क्यों रोका? पुलिस ने रुकवाया उनको। अच्छा, पुलिस ने रुकाया? उन्होंने स्टे लिया हुआ। ਅੱਜ ਪੁੱਤਰੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਫੇਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਰੋਕੋ ਅਗਲਿਆਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਨਾ ਬੜੇਲੇ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਰਕਾ ਖੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗਲਤ ਗੱਲ ਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਤੇ ਇਹ 3 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਆ ਉਤਲਾ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਨਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇ। ਉਦੋਂ ਫੌਤਗੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਲੀਲ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਾਲ ਘੋਲ ਘਾਲ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਜੀ ਡਾਹਣ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਚਲੋ ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋ 4 ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਈ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਲਮੀ ਇਹਦੇ ਕਿ ਪਿਓ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਰ ਥਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜੋ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆ ਜਾਨ ਛੱਡ। ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਜਰਾ ਕਾ ਮੈਕ ਫੜਾ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਾਟ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਖਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਝੂਠੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਇੰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਰਨ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਮਸਾਲੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਹਾਈ ਮਾਈ ਆਈਏ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨਾ कि वड्डियां वड्डियां दाड़ियां ने साडे को कोई बदतमीजी ना हुई है। यार साहब मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइएगा कि जमालपुर में एक फौतगी होती है जी जी और वो मैयत लेके जो है वो जनाजगा के बाहर आते हैं और जनाजगा को ताला लगा होता है, चाबी आपके पास होती है जी। आपके पास क्या राइट है, आपने जनाजगा को ताला लगाया हुआ है? नहीं सर, जिस दिन वो पहली मैयत हुई ना उनकी, जी जी उस दिन तो छुट्टी का दिन था, ठीक है, इतवार का दिन था, तो छुट्टी थी उस दिन, उनके साथ तो कोई मसला ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने तो वैसे ही जो है ना ये बात बना के ना तो मीडिया पे दे दी। उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है ना एक फौतगी और हुई। उस दिन मदरसा में बच्चियां पढ़ रही थी। ये 11 जून की मैं बात कर रहा हूँ जो जनाजा बाहिल मैयत। हाँ वही उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। उस दिन अंदर क्लासें लगी हुई थी मदरसे की, लेकिन वो जनाजा नहीं था। वो आधा घंटा 1 घंटा पहले वो आदमी वफात पा गया। ठीक है। तो उन्होंने बगैर बताए बगैर किसी को उसकी मैयत ला के मदरसे के दरवाजे के रख दी। ये रियाज साहब किसी औरत का जनाजा था आई थिंक? नहीं, जो औरत का था वो इससे पहले था, वो तो इस छुट्टी के दिन जो है ना वो फौतगी हुई थी। ठीक है। इतवार का दिन था। ठीक है। ये दूसरा जो फौतगी हुई ना ये आदमी था, बूढ़ा आदमी था। ठीक है। ये फौतगी हुई है तकरीबन सुबह 7 बजे या 8 बजे। उस टाइम क्लासें लगी हुई थी मदरसे के अंदर, बच्चियां पढ़ रही थी। तो इन्होंने जो है ना वो लेके आए मैयत उसकी। ठीक है। मदरसे के दरवाजे का रख दी कि बच्चियों को बाहर निकालो, हमने मैयत अंदर रखनी है। ठीक है। जनाजे का कोई इशू नहीं है, जनाजा तो पिछले 20 साल से जनाजा वहां पढ़ा जा रहा है। ठीक है। सारी दुनिया को टाउन कमेटी जाम के चीमा ने सब ने वहां जनाजा पढ़ा जा रहा है। ठीक है। जितने लोग फौत हुए उनका जनाजा उधर ही हुआ है, किसी ने कभी भी जनाजे के लिए मना नहीं किया। ठीक है। इन्होंने अभी नया काम शुरू कर दिया है कि उस जनाजे से पहले जो है उसका कफन दफन, उसको नहाना है मुर्दे को, वो सब कुछ मदरसे में अभी करना है हम लोगों ने। यानी अभी गुस्ल नहीं दिया उन्होंने? अभी गुस्सा नहीं दिया। ठीक है। तो हमने ये कहा कि चलो नहीं गुस्सा दिया फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन 1-2 घंटा बच्चियों को छुट्टी करवाते हो, घर चली जाती है तो फिर आप रख लेना, कोई बात नहीं। ठीक है। लेकिन लोगों ने नहीं माना। इन्होंने 15 पे कॉल कर दी पुलिस को। पुलिस आई तो पुलिस वालों ने बच्चियों को जो है ना वो घर भेज दिया छुट्टी करवा के। ठीक है। तो मैयत उठा के इन्होंने मदरसे के अंदर रख दी। ओके। ये टाइम था सुबह 10 बजे का। वहां उसका कफन दफन ये वो सब कुछ वहां किया गया। ठीक है। मदरसे के अंदर मगरिब के बाद जनाजा हुआ। किसी ने उनको बाद में डिस्टर्ब नहीं किया, रोका नहीं। ठीक है। खाना ये वो सब कुछ उधर हुआ। उसके बाद दफन करने के बाद इन लोगों ने इशा की नमाज के बाद मदरसे की तोड़ फोड़ शुरू कर दी। अच्छा। ताले जो तो वो बदल दिए, ताले बदल दिए, मदरसे की एक दीवार गिरा दी। ठीक है। उनका मतलब ये है कि यहाँ से मदरसा खत्म किया जाए। अच्छा। यहाँ नीचे हमने ना एक शाह साहब यहाँ आए हैं, उनका पता नहीं क्या नाम है, ये उनका वहाँ बनाना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं आस्थाना। अच्छा अच्छा। ये सारा उनका कमाल है। 6 महीने से यहाँ उन्होंने लोगों को इन सब को पीछे लगाया हुआ अपने। शाह साहब है वो, क्या शम्स शाह उसका नाम है। ठीक है। ये वो शाह जो कुछ कर रहा है ना वो कर रहा है। ठीक है। इन सब लोगों को उसने मरीद, ये उसके मरीद है, तो सारा पिंड ये जो है ना वैसे ही उन्होंने बदनाम किया वो सब। अच्छा, वैसे यार साहब शाह साहब का तो अपना वो आस्थाना है, अपना घर है, वो सारा सिस्टम उधर है, उनको क्या जरूरत है उधर आस्थाना लेके आने की? वो उनको जितनी जगह ज्यादा मिल जाए उतनी अच्छी बात है। उनका नहीं, आपको कंफर्म है कि ये इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, पक्की बात है ना। इस फौतगी के बाद 3 दिन के बाद उनका उर्स मुबारक था। ठीक है। वो 2-3 दिन उतने मेहमान भी यहाँ थे, इसी मदरसे में उनका क्याम था, यही खाना खाया सब लोगों ने, उनके मरीजों ने 100-200-300 आदमी यहाँ। ठीक है। ये सारा कुछ तफरी जो भी मदरसे में होती है, इसी यार्ड में ये बिल्डिंग जो है ना ये छीनना चाहते हैं।
कि इन लोगों को, ये बानी है चलाने वाले आदमी है भाई अच्छा अरशद। ठीक है 15-14 साल इन्होंने मदरसे को दिए हैं, ठीक है इसको इस हालत में लाए हैं। यहाँ तो कूड़े के ढेर होते थे। ठीक है। इस अच्छा जगह चले, पे। उस दिन अगर वो ताला लगा या नहीं लगा, चाबी वैसे आपके पास होती है? चाबी 3-4 लोगों के पास होती है इसकी। अच्छा डुप्लीकेट की हुई है? डुप्लीकेट, वो जो कमेटी के मेंबर है ना, 6 ठीक है। मेंबर है कमेटी के, ठीक है उनके पास भी चाबी, मस्जिद के पास चाबी है, इनके पास चाबी है, मेरे पास एक चाबी। ये एक चाबी तो है नहीं किसी की, यानी किसी एक के पास चाबी हो। अच्छा ये जो जगह है ये आपकी जाती मलकियत है? नहीं, ये हमारी जाती मिल्कियत नहीं। गुलामबारी चीमा होता था यहाँ के पुराने लोग जानते हैं उसको, चौधरी गुलाम बारी। चौधरी गुलाम। ठीक है उसकी बीवी ने ये जगह दी हुई थी हमको 2-2.5 कनाल। ठीक है कुछ कब्रिस्तान में उसको हमने मिक्स कर लिया, और कुछ ये 10-12 मरले जगह इसके बीच में मदरसा खड़ा कर दिया। ठीक है इसकी शुरू में तमीर कोई नहीं कर रहा था। यहाँ जो है ना, लोग कूड़ा फेंकते थे। ठीक है। इस जगह पे कूड़ा फेंकते थे। बाद में हमने जो है ना कोशिश की, थोड़ा बहुत करके इसकी चारदीवारी कर दी। ठीक है उसके बाद इसकी थोड़ी तमीर जो है ना, दीवारों में लोगों ने थोड़ी बहुत कुछ हिस्सा डाल के की। थोड़ी ऊपर बिल्डिंग गई है, तो उसके बाद इनके पास फंड नहीं था। अच्छा। मैं और मेरा भाई बाहर होते थे सऊदी अरब, ठीक है तो वहां से हमने इनको फंड अपनी जेब से, अपने जो है हमने इनको पैसे भेजे उस टाइम, 32,000 रियाल उस टाइम। ठीक है। हाँ, वो इस चीज का ये इनका ठेकेदार मंशा जो है ना, वो गवाह है। अच्छा अगर वो कुरान पाक पे हाथ रख के कह देवे कि ये बात गलत है, हम यहीं छोड़ देंगे ये मदरसा, अच्छा बात नहीं करेंगे दूसरी। ये आप दावे से कह रहे दावे हैं? से हम कह रहे हैं। ठीक है लोगों को कह रहे नहीं 32 नहीं, इन्होंने 30 भेजा था, चलो 30 भेजा, ठीक। ठीक है आज हिसाब करें उस 30,000 रियाल के आज कितने पैसे बनते हैं। हमने तो रियाल भेजे ना, पैसे तो नहीं भेजे। बिल्कुल। अच्छा यानी आपके बकौल आपने उधर पैसे लगाए हैं लगाए। कंस्ट्रक्शन में? हाँ, construction। अच्छा ठीक है, चलें ये सारा मामला हो गया जो भी है। अब जब मुआहदा हो गया है, साबिका SHO साहब थे इधर, ठीक है, जी, जी। और कुछ हमारी सियासी समाजी शख्सियात बैठी हैं, उनके होते हुए मतलब लोग बैठे हैं, जी। उधर मुआहदा हो गया, आपके साइन हो गए, अंगूठे हैं। अब मुझे बताएं आज आपने पुलिस वहां पे क्यों भिजवाई है? वो जनाब मैंने पुलिस इसलिए भिजवाई थी, तो मुआहदा जो उधर हुआ था थाने में, उस तरह का काम ये लोग नहीं कर रहे थे। अच्छा जो मुआहदे के ऊपर लिखा था? जो लिखा है मुआहदे के ऊपर, ठीक है ये अपने पास से जो सब कुछ कर रहे हैं। जो देखने जाता है उसको अंदर नहीं जाने देते। ठीक है ठीक है। कुछ 4-5 दिन पहले मैंने पुलिस स्टेशन में फोन किया, वहां से पुलिस आई, वो मदरसे की दीवार तोड़ रहे थे। ठीक है तो मैंने कहा यार ये दीवार ना तोड़ो। नहीं, दरवाजा लगाना नहीं गई। मैंने, पुलिस आई, उन्होंने बोला कि ये लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ऊपर लिखा हुआ है कि ऊपर की मंजिल में काम करना है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ठीक ये है। तोड़ रहे हैं। हाँ हाँ वो थानेदार था ASI, उसने वो बंद करा दिया। उसने बोला ये मत तोड़ो, ठीक है ये यहीं छोड़ दो। ओके इन्होंने कुछ तोड़ी हुई थी दीवार, लेकिन वो फिर ईंटें उठे फंसा के ना छोड़ दी वहां। कल हमने देखा कि उन्होंने वो फिर दोबारा तोड़ी। ठीक है कानून का एहतराम तो वो नहीं कर रहे, ठीक है वो बंद करवा के गए हैं, इन्होंने फिर तोड़ दी। कल पूरी दीवार उन्होंने वो जो है ना उसको तोड़ दिया, जिधर दरवाजा लगाना है। ठीक है नीचे से जो चीज मिलती है, बाहर से मिलती है, वो ऊपर लगा रहे हैं। जो चीज इन्होंने उधर कही थी ना अमजद अवान साहब ने, ठीक है कि जी नीचे से ऊपर का हिस्सा बहुत बेहतर हम करके देंगे, तो जिस तरह ये कहेंगे हम उस तरह बना के देंगे। तो इन्होंने हमको एक बार तो पूछा ही नहीं है ना। अच्छा ना वो दावत इस्लामी वाले आए हैं, ना उनको पूछा ठीक है कि भाई किस तरह का आपको चाहिए, हाँ हाँ कैसा चाहिए। ये अपनी मर्जी से जो कुछ कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अच्छा वैसे बरियार साहब अब बात यह है कि जो हमारी आवर सोसाइटी में इधर म्यूनिसिपल कमेटी जाम की चीमा, जी यहाँ पे माहौल बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। जी जी इसका बेहतरीन हल क्या है? उनका ये कहना है कि हमारे घरों में इतनी जगह नहीं है, अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है, हमारे घर में चारपाई रखने के लिए जगह नहीं है, जी। मेहमान आ जाए उनको बिठाने के लिए जगह नहीं है, ठीक है, जी। तो हमने जाहिर है उधर लेके आना है। ये जगह सारे गाँव वाले जो है ना मुतफिका फैसला है, जी उधर लेके आते हैं, ठीक है, उधर बैठते हैं, ठीक। गमी खुशी 100 मामला होते सही हैं। बात। मुझे बताएं इसका बेहतरीन हल क्या, आप क्या मतलब चाहते हैं? भाई मैं तो यही चाहता हूँ कि जिस तरह पहले चल रहे थे, जनाजा भी हो रहा था, मदरसा भी चल रहा था, ठीक है अभी भी उस तरह हो सकता है। दूसरी बात मैंने उनको ये भी बोली थी, अगर पहले से बेहतर हम कर सकते हैं, जिस दिन जनाजा या कोई मर्ग हो जाती है, किसी के घर जगह नहीं है, मुकम्मल छुट्टी बच्चों को हम उस दिन करवा देंगे। ठीक है मुकम्मल छुट्टी करेंगे, आप अपना जो काम है कर लें, ठीक है लेकिन ये फिर भी वो अपनी मर्जी करते हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो उसको खत्म कर रहे हैं। वो देखें, वो आप पे ब्लेम कर रहे हैं, आप उन पे ब्लेम, ठीक है, ये अल्लाह जानता सच्चा कौन है झूठा कौन है, सही ठीक है। कौन सी ऐसी चीज है कि जिसपे जो है वो सच्चाई और जो झूठा है या सच्चा है उसका फैसला हो जाए? उसका है एक हल
इनके गांव में से जो बोल रहे हैं कि हमारा 200 आदमी 200 घर का हमारा गांव हमारे साथ है। ठीक है। इन 200 घरों में से हम जो है ना वो 3-4 आदमी मुंतखब करते हैं। हम आप करेंगे? मैं करूंगा। ठीक है। वो 3-4 आदमी कुरान पे हल्फ देते हैं ठीक है। कि यहाँ माजी में कभी भी जनाजगा थी ठीक है। इस जगह पे। ठीक है। अगर वो हल्फ देते हैं कि पहले जनाजगा थी यहाँ, हम उनके हवाले या ये जगह जनाजगा के लिए थी। हाँ ठीक है। तो हम अभी जो है ना दस्तबरदार हो जाएंगे हम, यानी आप सारा कुछ छोड़ देंगे? सब छोड़ देंगे। हाफिज इकबाल ने यहाँ मदरसे में यहाँ कुछ देर बच्चों को पढ़ाया है, उसकी बीवी ने भी। ठीक है। ठीक है। उस टाइम ये मदरसा दावत इस्लामी वालों के पास नहीं था। ठीक है। ये खुद चलाते थे। ठीक है। जब इन्होंने देखा यहाँ नहीं चलता, क्योंकि उसके लिए फंड चाहिए थे, ये इतने अभी जो कर रहे हैं ना पैसा लगाइए, इनके पास इतना फंड नहीं था कि ये यहाँ कुछ बेहतरी करें। ठीक है। ये सब महल्ले वालों ने एक बैठ कर सलाह करके ये हम जो है ना दावत इस्लामी वाले को दे देते हैं, वो बेहतर तरीके से चलाएंगे। ठीक है। जब 12-13-14 साल हो गए वो चला रहे हैं। ठीक है। इससे पहले तो इनको कभी याद नहीं आया। पहले वो बेचारा जो नमाज अभी पढ़ाता है इनका, ठीक है, उसके ऊपर भी इन्हीं लोगों ने पर्चा करवाया। हाफिज इकबाल साहब। हाफिज इकबाल साहब। ठीक है। हवाला भुगत क्या है? हाँ। इसलिए तो कब्रिस्तान से एक दरख्त पता नहीं कटा हुआ पड़ा था, तो वो घर ले गया या बेच दिया उसने, मदरसे के लिए उसने बेचा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके ऊपर भी FIR बेचा था, जो पैसे होंगे वो मदरसे को ऊपर लगाए। ये वो बोर्ड है जो पहले मदरसा हमने कायम किया था उस जमाने का, यानी आज से 35 साल पहले। ये इन सब हजरात के नाम लिखे हुए हैं इसके ऊपर। कारी नेमतुल्लाह, कारी रहमतुल्लाह, दोनों भाई थे, ये फौत हो गए हैं। इनके आगे ले हैं सैयद पीर मुनीर हुसैन साहब, ये भी फौत हो गए हैं। भाई रफीक मैर, इनका नाम लिखा हुआ है, ये भी फौत हो गए। एक आदमी जिंदा है इसमें, वो है इमाम मस्जिद जमालपुर उस्मानिया मस्जिद के हाफिज इकबाल साहब, वो अभी जिंदा है। अगर वो कह दें ये नकली बोर्ड है, उस टाइम का नहीं है, तो तब भी हम जो ना मादरत कर लेंगे। अच्छा नाजरीन, ये अमानुल्लाह बड़यार साहब हैं, साथ अरशद बड़यार साहब। देखें, बेहतरीन तरीका जो असूल होता है वो ये है कि दोनों अतराफ के जो हैं वो मौक़िफ़ अवाम के सामने रखे जाएं। ठीक है। और साहिब इख्तियार लोग जो हैं वो इसका फैसला करेंगे। अगर मेरी आप राय पूछते हैं तो मेरी राय ये है कि यहाँ पे कोई भी बदनज़मी पैदा नहीं होनी चाहिए, अल्लाह का जिक्र भी होना चाहिए। अगर जनाजा के लिए वो जगह है तो वहाँ जनाजा भी पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है। अगर लोगों के घरों में इतनी जगह नहीं है तो वो वहाँ पे अपनी जो मैयतें हैं वो रखें, खुशी गमी जो मामलात हैं वो जो जायज़ है वो उधर करें। ठीक है। मानुल्लाह साहब ने एक बहुत बड़ी बात कर दी है, वो कह रहे हैं कि 4 लोग हम जो है ना अपनी मर्जी के चुनेंगे। ठीक है। और वो अगर हलफ दे दें इस बात का कि यहाँ पहले कोई जनाजगा था या ये जगह जनाजगा के लिए थी, ठीक है, तो हम इसी वक्त दस्तबरदार हो जाते हैं। ठीक है। और ये सारा कुछ उनके स्पुर्द कर देते हैं। आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।